Good morning friends. Once again we are back with one more video lecture of class 10th, subject mathematics, topic and chapter number 14, statistics. Dear students, this is our last lecture of this chapter, statistics, because as you must be knowing that I told you in the very first lecture, there are four topics, main four topics and four exercises in this chapter. First exercise talks about the topic mean by three methods. Second exercise talks about topic number 2, mode, with only one method. Third exercise talks about topic number 3, only one formula, name of topic, median. Similarly, this fourth exercise talks about topic number 4, that is graph. Okay, there are two types of graph in this one, which we will study right now in this lecture. As you might be looking onto the board, I have already made some format, okay, so that I can explain you smoothly without any disturbance. So it will take only one lecture today to explain you the full topic, because it's a small topic. Only two types of graphs are there, so I'll explain you both. But with that two topics or two types of graph, I need to explain you some more thing which you must take care of when you are solving this chapter. So एक special चीज भी है which I will tell you after I teach you two types. Okay, once I teach you two graph, then I will tell you something which is very important, which might be there in examination, but later on. So this is our next lecture about graph. So let's start today's session. Students, the word that I am using, graph, has synonym over here, and it is called ogives. I repeat, O-G-I-V-E-S, ogives. Graph, which type of graph? You can see the format. We call it graph. But these are some special type of graph, and they are known as ogives in this chapter, statistics. Okay. Now, as I said, there are two types of graph. That means two types of ogives. Two types of ogives. Both has name. I am writing the names over here right now. Forget about the graph. Okay. The first is less than type ogive. Less than type ogive. And second one is more than type ogive. These are the two types of ogives in our syllabus. Less than type and more than type. These are the two types. We need to discuss both of them. Students, if you remember the previous video lecture, when we were discussing median, find out median, over there one special sum was there. In that special sum, if you remember last video lecture, last sum, if you remember that special sum, what was the difference over there? If you look at the question table, in question table, this type of table was given, less than or equal to, and then it was written. Normally हमें कौन सी टेबल देखने की आदत है? Like this one, जहाँ classes दिए हो, जहाँ frequency दी हो. But in the last sum of the last video lecture, if you remember, if you don't remember, then rewind the last video lecture. If you remember, this type of table was given. And what I told you over there is, first of all, to convert this type of table into a normal table and then go for that median sum, right? If you remember that. So this type of table was given in that median question. Why I am discussing that again here is, as their name suggests, there are two types of graph, less than and more than type ogive. So to draw this type of graph, you don't need this normal table. No. You don't need this normal table. You need special tables. Special means something like this, जहाँ classes ना लिखें और कुछ ऐसा लिखा हो, less than something, less than something, less than something, or more than something, more than something, more than something. इस type का कुछ लिखा हो. So these are called special tables, and these are called normal tables. जहाँ classes दिए हो, they are normal tables, and these are special tables, less than and more than. So to draw this two type of graph, we don't want normal table. We want special tables like this.
which was given in the last sum also of last video lecture. That is why I was discussing about that sum. Okay, so we require these two things. Fine, this I wanted you to remember. Now let's talk about the graph. एक बात याद रखिएगा, ये जो बोर्ड पे ये दो टेबल ड्रॉ की गई, this one and this one, इनका हाल फिलहाल इस ग्राफ से, दोनों ग्राफ से कोई लेना देना नहीं है. ओके, ये आगे के एक टॉपिक के लिए I have already drawn it. I told you in the starting na there is something special I want to tell you. That special which I want to tell you is about this sum. That is why I have drawn this table. But in graph there is no need of this normal table. Again I repeat, in graph we want special tables. Okay, let's start learning the graph one by one. First of all, I'll start with this example number 9. If you open up the textbook, you will find this example number 9. In this example number 9, question is there कि ऐसी एक टेबल दी है, ये वाली, not this one, more than type. टेबल भी स्पेशल है. So ऐसी एक टेबल example number 9 में given है और वहां पूछ रहे हैं कि ग्राफ बनाओ उसका, more than type ग्राफ बनाओ. तो टेबल more than type हो तो ग्राफ भी more than type बनेगा. लिखा था ना मैंने यहाँ पे दो टाइप की ग्राफ है, लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप. सो इफ टेबल इज मोर देन टाइप, ग्राफ विल आल्सो बी मोर देन टाइप. इफ द टेबल इज लेस देन टाइप, ग्राफ विल आल्सो बी ऑफ द लेस देन टाइप. सो दैट्स व्हाई टू टाइप ऑफ ग्राफ्स आर देयर. It's very simple, nothing to do. Let me explain you. Suppose here is example number 9. This is table in the question. They are asking to draw the graph. So very simple, nothing more to written. Directly graph. Open the graph book, open the graph page, y-axis, x-axis, now scale. कौन सा scale लेना है? Remember always on x-axis you need to take these numbers, more than के साथ जो लिखे हैं. So 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ये सब आ जाए ऐसा scale लेना है. So obviously 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 at the gap of 5. Or on y-axis you need to take these numbers. This one, second column, which is the least number 3, which is the most number, maximum number 30. So your scale must be such that 3 भी आ जाए, 30 भी आ जाए. So here you have so many options. You can take a scale of 1, 2, 3, 4, but I don't think 1, 2, 3, 4 से 30 तक पहुंच पाएंगे ग्राफ में. So you have one more option, 2, 4, 6, 8, 10. उससे पहुंच जाएंगे 30 तक I think. So you can do that. 2, 4, 6. Remember, it is not necessary that because here the gap is 5, so here also it should be 5. No, there is no logic between this and this. This gap is selected on the basis of this numbers, and this base or this scale is selected on the basis of these numbers. Okay, so they don't have any relation, any interrelation I should say. So remember that. Now, after writing the scale, it's very simple. You just need to plot the points. Like first point, this number with this number, 5,30. ये पहला नंबर और यहाँ से पहला नंबर. So 5,30. So देखिए 5,30 कहाँ पे आता है? Here is 5 and here is 30. So you need to plot a point here. This is 530. Very simple. Just look at the table and plot the numbers. Second, 10 with 28. So 10 with 28. So somewhere over here. Right? Next one, 15 with 16. So 15 with 16. 15 with 16 will somewhere come over here. 15 with 16. Next one is 20 with 14. 20 with 14. So 20 and 14 will somewhere be here. Next one is 25 and 10. So 25 and 10 will be this one. Next one is 30 and 7. So this is 30 and this is 7. So 30 and 7 will come here. Next one is 35 and 3. So 35 and 3. So 35 and 3 will come over here. So now we have plotted all the points.
Now what you need to do is just join the points by scale, not by freehand. Join them by scale. When I say by scale, I don't mean take them all in one line. No, one by one. Join this two by scale. Okay, join this two by scale. Join this two by scale. Then this two. Then this two. And then finally this two. That is it. Sum is over. Less than type ogive, more than type ogive is done. Nothing else to do. This is question table. And in answer you have graph. In answer you don't need to draw this table. In answer you don't need to make any new table. In answer you don't need to write anything. Only this graph. So more than type. This is more than type. And remember, more than type graph will always be coming down from up to down. You can see over here from up to down. Now let's go to second part. So this question is over. Example number 9 is over. Okay. Now let's go to example number, exercise number 14.4. And in that question number 2. Exercise 14.4, question number 2. Over there, this type of table is given. Less than type table. And they are asking you to find out or rather draw less than type ogive. So very simple, exactly like this, no change at all. Here is the question table. First of all, draw y-axis, draw x-axis normally. Now take scale. I told you on x-axis you need to start with these numbers. Look at the number 38, 40, 42. So minimum 38, maximum 52. So obviously we will also take the same numbers 38, 40, 42, 44. But see what I have done over here. I have done this zigzag sign over here. This is called in mathematics kink. K-I-N-K, kink. Why I have not done that here and why I have done here? Because if you look at here, 5 gap was there and this gap was also 5, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15. So everything was balanced. But if you look at here, 38 to 40, so gap is only 2. But look at here, 0 to 38, so gap is 38. Whenever such situation comes, you need to draw this kink. So what does this kink means? Kink means the graph is more extended, but because we don't need that part, so we have suppressed it. And that's why this sign is drawn over here. Okay, this is called kink. So first column numbers here. Now on y-axis, which numbers will be taken? Minimum 0, maximum 35. Minimum 0, maximum 35. So I have taken a scale of 5. See, here the scale is 5, here the scale is 2. So I am again repeating, no logic between these two. If you look at this graph, scale was 5, here also it was 5. But in this one, over here it is 2, over there it is 5. So there is no logic between this and this one. Okay, now let's start this one, drawing this graph, plotting the points. First point, 38 and 0. 38 and 0 will come here, exactly over here. Next one is 40 and 3. So 40 and 3 will come somewhere here. Next one is 42 and 5. So 42 and 5 will come here. Next is 44 and 9. So 44 and 9 will go somewhere here. Next one is 46 and 14. 46 and 14. So 46 and 14 will go over there. Next one is 48 and 28. So 48 and 28. So 28 is here and 48 is here. So this is 48, 28. Next one is 50 and 32. So 50 and 32 will come somewhere here. 50 and 32. And the last one is 52 and 35. So 52 and 35. 52 and 35 will come here. So I am done with the plotting the points. Now what will I do? I will join them by using scale. So I am joining these points by using scale, one by one, not all together. With scale, with straight line, I am joining all these points. So this is done.
this question is also over. If you look at the shape of the graph, less than type will come from bottom to top, and this more than type will come from top to bottom. Always shape will be like this. Okay, it will not be up down up down. It will be in one direction, either increasing or decreasing. So topic is done. Two type of graph, less than type and more than type. So sums are done, chapter is done, but there is something special about this topic also. होता है ना हर बार, जैसे in topic mean, I told you there are some special sums. I explained you also. In mode, no special sums were there, but in median there was again special sums. If you remember the previous exercise, there were special sums. Similarly, in this topic also there are special sums, and now I am going to explain you those special sums. Okay, these were normal sums. If more than type table is given and you are asked more than type graph, it is normal. If less than type table is given and less than type graph you are supposed to draw, it is normal. But now something else. Now we are talking about some special cases कि जहां given कुछ और हो और पूछा कुछ और. ओके, तो ऐसा डिस्कशन करते हैं. लेकिन one more thing I would like to tell you before I start that special topic. And what is that special one is, कई बार क्या होता है इस ग्राफ में या तो इस ग्राफ में साथ में एक क्वेश्चन भी पूछते हैं. ये तो पूछते ही हैं कि ग्राफ बनाओ, साथ में एक क्वेश्चन पूछते हैं कि ग्राफ बन जाए उसके बाद मीडियन ढूंढो, फाइंड मीडियन. एक ऐसा कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं साथ में, हर बार नहीं आता, कभी कभार आता है कि ग्राफ ड्रॉ करने के बाद ग्राफ पे से मीडियन ढूंढो. पिछले हमने लेक्चर्स में मीडियन ढूंढना सीखा है ना, वो तो फॉर्मूला से था. कई बार इसमें पूछते हैं कि ग्राफ के साथ मीडियन ढूंढो, तो कैसे करना है ये मैं आपको बता दूं. जैसे मान लीजिए यही ग्राफ है, चलिए ओके, इस पे से आपको पूछा है मीडियन ढूंढनी, तो करना आपको बहुत सिंपल है. आपको देखना है टेबल कि टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, 30. आप क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें भी लिखा होगा, इस वाले क्वेश्चन में 9th एग्जांपल में टोटल फ्रीक्वेंसी इज 30. सो जो टोटल फ्रीक्वेंसी हो जिसको हम n कहते हैं उसको बाय 2 करना है आपको, n बाय 2. सो 30 बाय 2 इट विल कम टू व्हाट, 15. 30 बाय 2 इज 15. उस 15 नंबर को आपको यहां ढूंढना है इस y एक्सिस के ऊपर. ये 15 कहां है, here is 15. फिर उस 15 से आपको स्केल से सीधी लाइन खींचनी है. 15 से स्केल से सीधी लाइन खींचनी है. जहां टकराए ग्राफ में वहां स्टॉप हो जाना है. फिर वहां से आपको ऐसे वर्टिकल लाइन खींचनी है लाइक दिस. फिर ये जहां पे मिले, ये तो मैंने अप्रोक्सीमेट ग्राफ ड्रॉ किया है, सो आई माइट नॉट गेट द प्रॉपर आंसर, but when you will use the graph paper you will get the proper answer. Suppose you find that this is 15, this is 20 and the point this one is 17, suppose, or 17.5 भी हो सकता है. Suppose it is 17, then your answer of median is 17. Answer of median is 17. Done. So this might be there sometimes. Okay, यहाँ पे होता है ऐसा, तो same process, no change. If you will find this sum, total frequency you will find 35. अगर आप ये सम ढूंढेंगे क्वेश्चन नंबर 2 14.4 में आपको मिलेगा टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी दी होगी वहां पे, 35. तो 35 का हाफ करना है, दैट इज 17.5. और ये 17.5 इस पे ढूंढना है कहां है. तो 17.5 जो है वो 15 और 20 के बिल्कुल बीच में आता है. सो दिस इज 17.5. सो वहां से शुरू करना है, स्केल से सीधी लाइन खींचनी है, सीधी लाइन स्केल से बिल्कुल. ग्राफ को जहां टकराए वहां रुक जाना है जैसे वहां किया था, और जहां टकराए वहां से ऐसे लाइन खींच देनी है लाइक दिस बस. और फिर चेक करना है कि ये कौन सा नंबर है. मान लीजिए मुझे पता चला कि ये 47.5 है, तो आ गया आंसर मीडियन का 47.5. आंसर इज डन. सो ऐसा एक हो सकता है. ओके, तो ये थोड़ा सा स्पेशल था, याद रखिएगा. मैं कुछ स्पेशल बातें बता रहे हैं ना अभी हम. नॉर्मल पूरा हो गया. नॉर्मल वाज व्हिच वन, मोर देन टाइप टेबल, मोर देन ग्राफ.
less than type table, less than graph. This is normal. Now we are talking about special cases. So first special case क्या हो सकता था कि ग्राफ के साथ साथ मीडियन ढूंढो, ऐसा पूछा जाए तो इस तरीके से मीडियन ढूंढो. ओके, नाउ स्पेशल केस नंबर 2. और क्या अलग हो सकता है क्वेश्चंस के अंदर? स्पेशल नंबर 2 इज, क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि एक टेबल दी हो, जैसे मान लीजिए यही है मोर देन वाली, और आपको पूछा हो इसमें एक ही साथ एक ही ग्राफ में दोनों ग्राफ करिए, मोर देन एंड लेस देन. ये हो सकता है स्पेशल केस नंबर 2. ऐसा भी पूछा जा सकता है कि भाई एक ही ग्राफ पेपर पे दोनों ग्राफ करिए, मोर देन एंड लेस देन. हो सकता है, नो प्रॉब्लम. मतलब मोर देन टाइप ऐसे आया है, लेस देन टाइप ऐसे जाएगा, तो दोनों टकराएंगे. एक ग्राफ ऐसे रहेगा, एक ऐसे रहेगा, तो दोनों टकराएंगे, नो प्रॉब्लम. ऐसा हो सकता है, आप ड्रॉ कर सकते हो दोनों एक ही पे. क्या ध्यान रखना है उस टाइम पे? स्केल जरा ध्यान से लेना होता है ताकि दोनों उसके अंदर आ जाए. सो यू कैन ड्रॉ इट, बट देयर इज वन प्रॉब्लम हियर. देयर इज वन प्रॉब्लम. If you want to draw two graph in one graph paper, there is one problem. What is that problem? That problem is, table given in the question is this, more than type. So you can draw this more than type graph. But पूछा तो ये दोनों ड्रॉ करिए. अब दूसरा ड्रॉ करना हो लेस देन वाला, तो आपको लेस देन वाले टेबल चाहिए होती है. इस मोर देन वाली टेबल से तो दोनों नहीं हो सकते, इसीलिए ये हुआ स्पेशल केस. तो क्या करना है आपको? तो आपको वैसी टेबल बनानी पड़ेगी पहले, फिर जाके वैसा वाला ग्राफ इसी ग्राफ पेपर के अंदर होगा, है ना. वो उस टाइप का ग्राफ आप अलग अलग बनाओ, चाहे एक में बनाओ, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन टेबल तो दोनों की अलग लगती है. ऐसा ग्राफ बनाना हो तो ये टेबल लगती है, वैसा ग्राफ बनाना हो तो ये टेबल लगती है. तो टेबल तो अलग चाहिए. ग्राफ चलो भले एक ही में ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन टेबल तो अलग होनी चाहिए. लेकिन क्वेश्चन में एक ही टेबल दी है, मान लो मोर देन टाइप या फिर लेस देन टाइप, और आपको पूछा है कि आप दोनों ग्राफ बनाओ, तो क्या करेंगे? तो टेबल को कन्वर्ट करना सीखना पड़ेगा पहले, कि ये टेबल दी हो तो उसमें से ये टेबल कैसे बनाई जाएगी, या तो ये टेबल दी हो तो उसमें से ये टेबल कैसे बनाई जाएगी, ये पहले सीखना पड़ेगा. तो अब जो हम सीखने जा रहे हैं वो फाइनल थिंग है, कन्वर्जन बिटवीन ये नॉर्मल टेबल जिसको हम बोलते हैं क्लासेस वाली, और ये स्पेशल टेबल्स जिनको हम बोलते हैं लेस देन एंड मोर देन टाइप वाली. इनका कन्वर्जन सीखना है हमको, कि ऐसी टेबल में से ऐसी कैसे बनानी है, या इसमें से ये कैसे बनानी है. कन्वर्जन सीखने हैं हमको. ओके, तो अब ये शुरू करते हैं कन्वर्जन सीखना. वेरी सिंपल, इट जस्ट रिक्वायर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्रेन, नथिंग मोर देन दैट. मतलब मान लीजिए यही टेबल है, मान लीजिए क्वेश्चन वैसे है भी, अगर आप देखेंगे ना 9th नंबर का क्वेश्चन, तो यही लिखा है, ये टेबल दी है और दोनों ग्राफ पूछे. ठीक है, तो पहले तो एक काम करना चाहिए, इसमें से ये तो डायरेक्ट बन जाएगा, तो बना लेना चाहिए सीधा. मैं इसको मिटा देता हूं, ये तो मीडियन ढूंढने के लिए था, स्पेशल केस नंबर 1. हाँ, तो पहला काम क्या करना चाहिए, ये टेबल ये ग्राफ बना लिया. ऐसा नहीं करना चाहिए. क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि स्केल अगर आप एक को देख के बना देंगे तो भी हो सकता है कि दूसरे का स्केल आप एडजस्ट ना भी कर पाओ इसके अंदर. इसीलिए दोनों बनाने हो ग्राफ, तो ग्राफ लास्ट में बनाना चाहिए. सबसे पहले दोनों टेबल्स रेडी कर लेने चाहिए. ठीक है, तो मान लीजिए ये है क्वेश्चन में टेबल मोर देन वाली, तो मोर देन वाली है तो ये तो ग्राफ बन ही जाएगा बाद में आराम से, विदाउट एनी प्रॉब्लम. अब इसमें से वो टेबल कैसे आए ये हम जानना चाहते हैं. ठीक है, तो अब नाउ आई एम इरेजिंग दिस वन. ओके, फॉर सम टाइम आई एम इरेजिंग दिस वन. इफ यू लुक एट हियर, अगर आपको स्पेशल में से वैसी लेस देन वाली बनानी है तो याद रखिएगा जरा, मोर देन में से अगर आपको लेस देन टाइप टेबल में जाना है तो रास्ते में सीधा नहीं जा पाएंगे. देयर इज वन स्टेशन वेयर यू नीड टू स्टॉप एंड द स्टेशन इज नॉर्मल टेबल. किसको बोलते हैं नॉर्मल? हम ऐसी क्लास वाली को. सो अगर मोर देन टाइप टेबल है, जैसे ये है, उसमें से आपको ऐसी लेस देन टाइप टेबल बनानी है, दिस वन. सो डायरेक्टली फ्रॉम दिस टू दिस यू कैन नॉट गो. पहले ये मोर देन टाइप टेबल में से आपको आना है नॉर्मल टेबल में, और फिर नॉर्मल में से आप बना पाएंगे
लेस देन टाइप टेबल। वैसे ही अगर क्वेश्चन में ये गिवन होता और दोनों ग्राफ पूछे होते तो इसमें से ये तो बन ही जाता सिंपल सीधा। वो बनाने के लिए ये वाली टेबल चाहिए होती मोर देन वाली, तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस है कि अगर आपको ऐसी टेबल गिवन है तो पहले आपको नॉर्मल बनानी है और फिर आपको ये बनानी है। सो रास्ते में ये टेबल तो आएगी, पहले यहां तो आना ही पड़ेगा। ओके, सो नाउ आई एम टीचिंग यू, इट्स वेरी सिंपल, आई विल टीच यू फ्रॉम बोथ वेज। ओके, डोंट वरी, फ्रॉम दिस टू दिस and from this to this I will teach you both and then our chapter and session will be over. So let's start first of all this one. Suppose ये given है, इसमें से नॉर्मल में जाएं, नॉर्मल में से यहां जाएंगे हम। चलिए शुरुआत करते हैं। तो मोर देन, ये रही मोर देन टेबल, इसमें से जाना है नॉर्मल में। कैसे जाना है सीखिए, मैंने ऑलरेडी बना के रखा है। मोर देन में से नॉर्मल ये रहा, इस मोर देन की नॉर्मल ये रही, लेकिन फिर नॉर्मल में से कहां जाना है, लेस देन में जाना है। वो नहीं बनाई, वो तो अलग सम है ना पूरा, इसी सम की बात कर रहा हूं मैं। तो ये मोर देन टेबल, उसमें से नॉर्मल और लेस देन वाली आई विल मेक इट ओवर हियर। ओके, पहले तो ये सीखे मोर देन में से नॉर्मल में कैसे जाना है। वेरी वेरी सिंपल, रीड द फर्स्ट वन, मोर देन और इक्वल टू 5, 5 या उससे ज्यादा। तो पहला क्लास कौन सा होगा, 5 to 10 ही होगा। 5 से ज्यादा जाना है तो कैसे पता चला कि 5 से 10 ही क्यों, 5 से 15 क्यों नहीं, 5 से 20 क्यों नहीं। यहां देख लेना है कितने कितने का गैप है, 5 का, तो सारे गैप 5 के ही आएंगे। सो पहले लिखा है मोर देन 5, तो आपको लिखना है 5 से 10, मोर देन 10 तो 10 to 15, मोर देन 15 तो 15 से 20, 5 के गैप पे। ऐसे लास्ट वन कौन सा है, 35, मोर देन 35, सो 35 से 40। सो पहली कॉलम बन गई। अब दूसरी कॉलम फ्रीक्वेंसीज, ये वही की वही नहीं रहेंगी, चेंज होंगी। तो कैसे चेंज करें, सीखे जरा इसको। इंटरप्रिटेशन करना है नॉर्मल सा। ये क्या कहता है, 5 से ज्यादा वाले कितने हैं, 30। समझिएगा जरा ध्यान से, ये 5 नंबर है मान लीजिए नंबर लाइन पे, उससे ज्यादा 30 लोग हैं। 30, 5 से ज्यादा उम्र है, मान लीजिए एज है, 5 से ज्यादा उम्र वाले 30 लोग हैं। ओके, ये क्या बोलता है, 10 से ज्यादा वाले कितने, 28, 5 से ज्यादा वाले 30, फिर 10 यहां पे, 10 से ज्यादा वाले 28। तो पहले जो वो 30 गिना था उसके अंदर ये 28 तो आ गया ना साथ में, तो वो दोनों के बीच में कितने बाकी रहे, ओनली 2। यहां से ये सारे 30 थे और यहां से ये सारे 28 है, तो बीच में कितना रह गया, सिर्फ 2 रह गया। दैट इज व्हाई आई हैव रिटन फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट, 2। मुझे क्या पता चला कि मुझे इन दोनों को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा तो मिलेगा। तो 30 एंड 28 को मैंने सबट्रैक्ट कर दिया तो मिल गया 2। अब एक बार पता चल गया कि सबट्रैक्ट करना है तो हर बार यही करना है, फिर बार बार नहीं सोचना है। मतलब 28 माइनस 16 तो 12, 16 माइनस 14 तो 2, 14 माइनस 10 तो 4, 10 माइनस 7 so 3, 7 माइनस 3 so 4, and last number as it is, no change। so हो गया कन्वर्जन पूरा। फ्रॉम मोर देन हम आ गए नॉर्मल में, फ्रॉम मोर देन हम आ गए नॉर्मल में, नॉर्मल में से अब कहां जाना है हमको, लेस देन में। तो अब इसको देख के लेस देन वाली टेबल बनानी है, तो वो मैं यहां नई बनाता हूं, ये नहीं है, ये तो अलग सम है पूरा। तो अब मैं नई टेबल यहां पे बनाता हूं, लेस देन वाली टेबल, क्योंकि हमको दोनों ग्राफ बनाने हैं तो वो टेबल चाहिए होगी। तो चलिए शुरू करता हूं। अब इसमें से ये बन चुका है, ठीक है, तो अब इसको नहीं देखना है, अब सिर्फ इसी पे फोकस करना है। सो बनाते हैं टेबल। लिखा जाएगा लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, पहले देखो पहले कौन सा क्लास है, 5 to 10। तो यहां मैं लिखूंगा लेस देन और इक्वल टू 10। 5 क्यों नहीं, अगर मैं लिखता लेस देन और इक्वल टू 5, 5 या उससे कम, तो हमारे पास कहां इंफॉर्मेशन है 5 या उससे कम में, हमारे पास तो इंफॉर्मेशन 10 या उससे कम में है ना, इसलिए लिखा जाएगा लेस देन और इक्वल टू 10। फिर लिखा जाएगा लेस देन और इक्वल टू 15, फिर लिखा जाएगा लेस देन और इक्वल टू 20, फिर लिखा जाएगा लेस देन और इक्वल टू 25, लेस देन और इक्वल टू 30, लेस देन और इक्वल टू 35, लास्ट वन विल बी लेस देन और इक्वल टू 40।
कैसे चला पता ये देख लीजिए लास्ट वन 40 ये कम वाला है 40 से 45 होता तो एक और लिखते लेस देन और इक्वल्स टू 45 वो तो है नहीं यहाँ पे सो दिस इज आवर लास्ट वन। तो अब ये टेबल बनने जा रही है। अब यहाँ कौन से नंबर आएंगे वो देखने हैं। जैसे इस टेबल में से यहाँ गए थे तो ये नंबर रिपीट नहीं हुए थे अलग सोच के लिखे थे वैसे ही जब इस टेबल में से यहाँ आएंगे तो नंबर्स रिपीट नहीं होंगे अलग से सोच के लिखने हैं आपको वापस से कि कैसे होगा। तो आइए सोचते हैं कैसे होगा। अगेन यू नीड टू अप्लाई योर ब्रेन। कैसे लुक एट द फर्स्ट वन 5 से 10 में है 2 हमने यहाँ क्या लिखा है लेस देन और इक्वल्स टू 10 10 से कम वाले कितने हैं तो इनमें से 10 से कम वाले कौन है एक ही है ना ये 2 तो यहां लिखना है सिर्फ 2। फिर ये क्या लिखा है लेस देन और इक्वल टू 15 से कम वाले कौन से हैं भाई तो 15 से कम वाले ये भी हैं 15 से कम वाले ये भी हैं तो दोनों को प्लस करना है 2 + 12 सो व्हाट विल बी योर आंसर 14। बस एक बार पता चल गया कि प्लस करना है अब हर बार प्लस करो कितना आंसर आया है 14। अब इसमें प्लस करो ये 2 कितना बन जाएगा 16 अब 16 में प्लस करो ये 4 कितना बन जाएगा 20 अब इस 20 के अंदर प्लस करो ये 3 कितना बन जाएगा 23 के अंदर प्लस करो ये 4 बन जाएगा 27 के अंदर प्लस करो ये 3 तो बन जाएगा 30। जॉब इज डन सम ओवर। क्योंकि अब देखिए ये स्पेशल टेबल थी मोर देन वाली इसमें से मोर देन का तो वो ग्राफ बन ही ज्यादा ये आ गई लेस देन वाली इसमें से लेस देन का भी ग्राफ बन जाएगा। तो एक ही ग्राफ पेपर में अब दोनों ग्राफ यू कैन इजीली ड्रॉ। स्केल का ध्यान रखना होता है जैसे 5 10 15 है तो यहाँ भी 10 15 वाले हैं तो एक्स एक्सिस पे 5 का स्केल रखना होता है वाई एक्सिस पे कौन सा रखेंगे जरा देखेंगे यहाँ मिनिमम है 3 मैक्सिमम है 30 यहाँ भी मिनिमम है 2 मैक्सिमम है 30 सो आई थिंक सेम स्केल काम आ जाएगा 2 4 6 8 1। तो ये टॉपिक पूरा हो जाने के बाद अब हम दूसरा लेते हैं मतलब मान लीजिए मोर देन टाइप टेबल ना दी होती लेस देन टाइप टेबल दी है और आपको क्या करना है दोनों ग्राफ बनाने हैं। अब दोनों ग्राफ बनाने हैं तो वापस लेस देन में से पहले कहां जाना पड़ेगा नॉर्मल में और नॉर्मल में से फिर कहां आना पड़ेगा मोर देन में। मैंने दोनों बना के रखी है आइए बताता हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए ये टेबल थी है लेस देन तो इसमें से अपना वो लेस देन वाला तो बन ही जाएगा ना एक ग्राफ तो बनाना है दो साथ में इसलिए ये टेबल चाहिए होगी। तो पहले इसमें से ये टेबल में आना है कैसे आना है सिंपल कॉमन सेंस अप्लाई दिस वन। फर्स्ट वन इज लेस देन और इक्वल्स टू 38 से कम तो पहला क्लास कौन सा होगा 36 से 38 क्योंकि गैप तो 2 का है। नेक्स्ट वन इज लेस देन और इक्वल्स टू 40 से कम तो कौन सा लिखा जाएगा 38 to 40। ऐसे लास्ट क्लास कहां जाना है लेस देन और इक्वल्स टू 52 सो लास्ट क्लास विच वन 50 से 52 तो बन गई पहली कॉलम। अब दूसरी कॉलम आप जानते हैं ये वही तो नहीं रहेगी अलग हो जाएगी कैसे सिंपल कॉमन सेंस दैट्स इट। ये क्या था 38 से कम वाले हैं 0 तो 38 से कम वाले हैं 0 तो यहां 0 लिखना है। ये क्या था 40 से कम वाले कितने हैं 3 38 से कम वाला कोई नहीं 40 से कम वाले हैं 3 तो वो तीनों के तीनों यही होंगे ना इनके बीच में 38 से कम वाला कोई भी नहीं। अब 40 से कम वाले टोटल 3 है तो वो तीनों यही होंगे इनके बीच में सो 38 से 40 के बीच में 3। फिर 42 से कम वाले हैं 5 42 से कम वाले हैं 5 40 से कम वाले थे 3 हमको तो सिर्फ यहाँ के चाहिए तो इन 5 में से इन 3 को माइनस करना चाहिए ताकि ये सिर्फ बचेगा वो 2 तो हमको पता चल गया माइनस करना है तो यहाँ आंसर आया 2 बस अब हर बार माइनस करना है दैट मींस 9 minus 5 4 14 minus 9 5 28 minus 14 14 32 minus 28 4 35 minus 32 3 done। So from less than table we are now into normal table but we want more than table so from this normal we are going to now more than table right। Let's go to more than table very simple so write down more than or equal to पहला नंबर कौन सा आएगा 36 क्योंकि इसको देखें तो पहला क्लास जो है वो कौन सा है 36 से ज्यादा वाला है सो फर्स्ट क्लास इज मोर देन और इक्वल टू 36
तो आ गया मोर देन इक्वल्स टू 36। फिर नेक्स्ट कौन सा है, मोर देन और इक्वल्स टू 38, 40, 42। ये लास्ट कौन सा है, मोर देन और इक्वल्स टू 50। क्या के अब ऑब्वियस सी बात है, ये कॉलम सेम तो नहीं आएगी, यहाँ वाली बदल जाएगी, वापस लॉजिक सोचना पड़ेगा। क्या लिखा है, मोर देन और इक्वल टू 36, 36 से ज्यादा। तो ढूंढो इस टेबल में कौन है 36 से ज्यादा। क्या ये है, हाँ ये है, ये भी 36 से ज्यादा है, यस, ये भी 36 से ज्यादा है, यस, एवरीथिंग इज मोर देन 36। तो सब कहां आएंगे, तो सबको प्लस करना है, 3 + 2 5 + 4 9 14 28 32 35। That is why I have written 35 here, because we will accept everyone. Now more than or equals to 38, 38 से ज्यादा वाले कौन है, सिर्फ एक ये नहीं है, बाकी ये सब 38 से ज्यादा वाले हैं। तो इसको माइनस कर दो 0 को, 35 में से 0 को माइनस कर दो, 35 ही रहेगा अभी भी। अच्छा, अब मोर देन इक्वल टू 40, 40 से ज्यादा वाले, तो 40 से ज्यादा वाले ये नहीं चलेंगे, ये नहीं चलेंगे, ये सब चलेंगे। तो इनका टोटल आएगा 32, मतलब हर बार ये माइनस करना है। अब ये 32 है, अब ये 2 माइनस कर दो, 30 है, 4 माइनस कर दो, 26 है, 5 माइनस कर दो, 21 है, 14 माइनस कर दो, 7 है, 4 माइनस कर दो, 3 है, बस अब करेंगे जरूरत नहीं, यहाँ पूरा हो गया। So we got more than table. So now we have both the tables, less than type and more than type. We can now definitely put x-axis and y-axis, एक ग्राफ ऐसे जाएगा, एक ग्राफ ऐसे जाएगा, बन गए दोनों ग्राफ एक ही के साथ। समझ में आई बात? So, अगर एक ही टेबल दी हो और दोनों ग्राफ बनाने हो तो टेबल का ऐसे कन्वर्जन करना पड़ता है। तो मोर देन में से पहले नॉर्मल में जाते हैं, नॉर्मल में से लेस देन में, या तो लेस देन हो तो नॉर्मल में जाते हैं, फिर मोर देन में जाते हैं। मतलब नॉर्मल टेबल तो बीच में आएगी ही आएगी। तो ये कन्वर्जन करना आना चाहिए अगर क्वेश्चन ऐसा है। ठीक है, तो ये स्पेशल केस पूरा हुआ, ये था स्पेशल केस नंबर 2। अब एक चीज फाइनल बतानी रह गई सिर्फ, स्पेशल केस नंबर 3, वो बता देता हूं। वो क्या होता है, मान लीजिए कि दोनों ग्राफ, मैंने एक्चुअली रफ कर दिया बट चाहिए होगा, दोनों ग्राफ एक ही ग्राफ पेपर के अंदर आपने ड्रॉ किए हैं। अब क्वेश्चन में साथ में ये भी पूछ लिया कि फाइंड द मीडियन। ऐसे बोलते हैं सिंगल ग्राफ के अंदर कि एक ही ग्राफ है, ऐसा मान लीजिए कुछ ऐसा, इसके अंदर मीडियन पूछा था तो क्या करना होता था, आपको याद होगा n/2, यहां से यहां आओ, फिर यहां से ये ढूंढो, ये करना होता था। लेकिन दोनों हैं और मीडियन पूछा है तो क्या करना है, तो ऐसा नहीं करना है n/2 या कुछ भी, सिर्फ सिंपल क्या करना है, दोनों ग्राफ जहां इंटरसेक्ट किए उस पॉइंट से नीचे तक लाइन खींच दो सीधी, बस देख लो कौन सा नंबर है। मान लियो कि पता चला ग्राफ देख के कि ये नंबर है 47.5 एंड योर मीडियन आंसर इज 47.5, सो जॉब इज डन। ये भी क्वेश्चन हो सकता है छोटा सा। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, with this we are winding up this session. Before I wind up, two things, let me just rewind you in 2 minutes and let me give you homework also. What we have discussed today, we have discussed graph, two type of graph, less than and more than. To draw less than graph you need less than table, to draw more than graph you need more than table. Very simple, but there can be 3 special cases. Special case number 1, more than table दी है, more than ही ग्राफ पूछा है लेकिन साथ में मीडियन पूछा है कि मीडियन ढूंढो, तो क्या करना था, n/2 से लेके यहां से यहां लाइन और ये लाइन, तो ये नंबर आंसर। ओके, और दूसरा स्पेशल केस क्या हो सकता है, दूसरा स्पेशल केस कि टेबल आपको एक ही दी है मोर देन वाली, लेकिन पूछा है दोनों ग्राफ बनाओ, तो मोर देन से मोर देन का तो ग्राफ बन जाएगा, लेस देन का ग्राफ तो नहीं बनेगा, उसके लिए आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे कन्वर्ट, पहले मोर देन में से जाएंगे नॉर्मल में, नॉर्मल में से जाएंगे लेस देन, जब दोनों आ जाएं फिर दोनों ग्राफ बनाएंगे। या तो लेस देन भी आओ तो भी हो सकता है, लेस देन में से पहले जाएंगे नॉर्मल में, नॉर्मल में से आएंगे मोर देन में, दोनों टेबल आ गई फिर दोनों एक साथ प्लॉट कर देंगे। तो ये था स्पेशल केस नंबर 2। स्पेशल केस नंबर 3 क्या हो सकता है कि जब ऐसी सिचुएशन हो, दोनों ग्राफ ड्रॉ किए हो, उस पे से मीडियन पूछा हो, तो जहां दोनों टकराएं उस पॉइंट से सीधी रेखा खींच लीजिए, जो आंसर आए दैट इज द आंसर ऑफ मीडियन। ओके, सो दिस वाज अबाउट टुडेज सेशन। Now before we wind up to this session, let me give you a homework for this one.
homework for you people today will be two sums, or rather I should say two graphs. It is exercise 14.4, question number 1 and 3, because question number 2 I have already taken. So today's homework will be two questions, question number 1 and question number 3. Both will be having graph. So I will advise you to purchase the graph book, because in graph book only you can plot the graph very properly. In notebook it will not be that much proper. So I advise you to purchase the graph. But if suppose because of lockdown the shops are not open, although they have opened up now, but if they are not open, then you can draw it in your notebook also, no problem. But to be perfect, to learn it perfectly, you need graph. So you should and you must use graph book. Even if you have the graph book of previous standard, it is okay, you can use that. But as much as possible, use the graph. Okay, then it will be a more perfect. Fine, so I think we should wind up this session here. Everything is done, topic is done, chapter is done. So we are ending this session. When will we meet next time? We'll start one more new chapter of mathematics class 10. Okay, so till the time, thank you so much and have a very good day. Stay home, stay safe, take care of yourself and your family also. Thank you so much.